Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let's begin today's session. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni yanfa'uni wa zidni ilma. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين وأجمعين. Today we start from page 100 and we're talking about the false reports that were inserted by the Rafidis into the story of the Shura. So we will take one by one what all were those false or fake hadith or the stories that they created and fabricated. Accusations against the Sahaba of favoritism in issues concerning the Muslims. The Shia reports accuse the Sahaba of favoritism in issues concerning the Muslims and suggest that Ali was not happy about Abdurrahman choosing the Caliph. It was narrated by Abu Makhnaf and Hisham al-Kalbi from his father and Ahmad al-Jawhari that Umar gave the deciding choice in the event of an equal split to Abdurrahman ibn Auf, and Ali realized that the caliphate had slipped from his grasp because Abdurrahman would choose Uthman because they were related by marriage. But Ibn Taymiyyah refuted that there was any close relationship by blood between Uthman and Abdurrahman. He said, Abdurrahman was not a brother or a cousin of Uthman, and he was not from the same clan at all. Rather, one was from Banu Zuhra and the other was from Banu Umayyah. And Banu Zuhra was closer to Banu Hashim than Banu Umayyah. Banu Zuhra were maternal uncle. Banu Zuhra were maternal uncles of the Prophet ﷺ, including Abdurrahman ibn Auf and Saad ibn Abi Waqas, of whom the Prophet Muhammad ﷺ said, Hada khali fal yurini amrun khalahu. This is my maternal uncle. Who dares to compare his maternal uncle to mine? The Prophet ﷺ did not establish brotherhood between one Muhajir and another, or between one Ansari and another. Rather, he established brotherhood between the Muhajirin and the Ansar. He established brotherhood between Abdurrahman ibn Auf and Saad ibn al-Rabi'i al-Nasari. This hadith is well known and established in the books of Sahih and elsewhere, and all the scholars know about that. The Shia based their reports of Abdurrahman's favoring Uthman on the fact that they were related by marriage, but they forgot that the ties of blood are stronger than the ties through marriage. And they also forgot the nature of a relationship between the believers in the first generation of Islam, and that it was based on neither ties of blood nor ties through marriage. The way in which Abdurrahman and Uthman were related through marriage was that Abdurrahman was married to Kulsum's bint Uqba ibn Abi Mu'id, the sister of Al-Walid. So first allegation जो ये लगाते हैं राफिदीज, जो अपनी फेक और फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन के बनिस्बत के, वो कहते हैं कि फेवरेटिज्म हुई है अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के फेवर में इसलिए वोट किया क्योंकि वो रिलेटेड थे। अब इब्न तैमिया जो है वो पूरा खुलासा करते हैं कि इनकी रिलेशनशिप थी ही नहीं, क्योंकि एक जो है वो बनु ज़ुहरा को क्लैन को बिलोंग करते थे, उनके कुंबे को बिलोंग करते थे, और एक बनु उमैया के, और बनु ज़ुहरा जो है वो बनु हाशिम के ज्यादा क्लोज है बनु उमैया के साथ, तो वो वाला तो पहले ही कट गया, यानी रिफ्यूट कर दिया उन्होंने। और फिर बनु ज़ुहरा जो है वो मैटरनल अंकल्स थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ और साद इब्न अबी वक़ास जो है उनके बारे में वो कहते हैं, क्योंकि वो ननियाल के साइड में मैटरनल अंकल्स की साइड से थे, तो कहते हैं कि ये है मेरे मैटरनल अंकल। और कौन कंपेयर कर सकता है यानी अपने मैटरनल अंकल को हमारे उनके यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल अंकल के साथ, यानी सुभान अल्लाह उनके दर्जात इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ जज्बा कि वो किस तरीके से इस्लाम की और उम्मत की खिदमत करते थे, तो उनके साथ देयर इज नो कंपैरिजन। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रदरहुड का जो एक रिश्ता बनाया था, भाईचारगी का, वो इस तरीके से नहीं बनाया था जो कि कुंबे से या पैसों से या कोई लीनिएज से रिलेटेड था। उन्होंने कैसे बनाया था, मुहाजिर विद अंसार, उस तरीके से उन्होंने भाईचारगी का एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बनाया था। और ये लोग जिन्होंने ये झूठ मनगढ़ंत बात रिलीज की या अपने बुक्स और टेक्स्ट में इंक्लूड की है, वो शायद ये चीज भूल गए थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दिखाए हुए रास्ते पर जो सबसे ज्यादा चले हैं वो यही सीनियर मुस्लिम्स जो थे और जो सहाबाज थे, इनके जैसा किसी ने भी दीन इस्लाम को फॉलो नहीं किया है। तो उन्होंने वो शायद ये बात भूल गए थे, और उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये लोग ना तो खून के रिश्तों को तरजीह देते, ना तो शादी के बाद इन लॉज वाले रिश्तों को तरजीह देते हैं। वो किस चीज को तरजीह देते हैं? वो ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड जो है ना, जो जिस फैसले में उम्मत की खैर ख्वाही है, दीन की खैर ख्वाही है, उसको तरजीह देते हैं। तो वो ये सारे पॉइंट्स और नुक्ते जो है वो शायद वो लोग भूल गए। एक बात आप जहन में रखें कि झूठ के जो है ना वो पाँव नहीं होते। कभी भी कुछ भी फेक न्यूज मन घड़त चीज होगी, उसका कोई बेस नहीं होगा। द मोमेंट यू डिग इन, अगर आप थोड़ी सी उसकी तहकीक करेंगे तो वो खाली बिल्कुल बेसलेस और खत्म हो जाती है, वो बात ही हवा हो जाती है। एंड इसके बरअक्स अगर कोई सच्ची बात हो, हक की बात हो, प्रूवन हो और उसकी दलीलें मौजूद हो, तो सच की एक अपनी ताकत होती है। तो इसीलिए झूठ जो है वो 1 मिनट में जैसे ही आप उसकी रिसर्च करो, कुछ फैक्ट्स सामने रखो या फैक्ट्स मांगो, तो खत्म हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड पॉइंट था द उमावी पार्टी एंड द हाशिमी पार्टी. The report of Abu Makhnaf suggests that there was a dispute between Banu Hashim and Banu Umayyah during the swearing of allegiance, but this is not true. It is not mentioned in any report, sound or weak. अबू मखनफ एक और एक मामला जो सामने लाते हैं कि बनु हाशिम और बनु उमैया की जो है, ये जब बैत ली जा रही थी ना, एलिजेंस, तभी कुछ डिस्प्यूट हुआ था। लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि कहीं पर भी इसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है। Some historians were influenced by the reports of the Rafidi Shia and based their incorrect analysis on these reports. So they portrayed the discussion among the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam about the appointment of the new caliph as a tribal dispute, saying that the people divided into two groups, the Umayyad party and the Hashimi party. This is an imaginary idea and incorrect conclusion Mama. For which Mama. There is no Mama. Evidence at all. Take this. Write this. Right. Because that is not the kind of atmosphere in which the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam were living. When a muhajir would stand with an Ansari against his own father or brother or cousin or tribe, it ignores the fact that these companions are the ones who sacrificed all worldly gains in order to protect their religion. It is not based on sound knowledge of these nobles who had been given the glad tidings of paradise. There are many events in their lives which prove that these people were far above looking at things from such a narrow perspective when dealing with their affairs. It was not the matter of family or tribal representation. They were appointed to the Shura Council because of their status in Islam. तो ये जो बात कह रहे हैं कि जब ये बैच ली जा रही थी, एलिजेंस हो रहा था, तब बनु हाशिम और बनु उमैया के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि एक बात हमें जहन में रखनी है कि जो ये मुहाजिर और जो ये अंसार थे और जो अर्ली जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका नजरिया, उनका जज्बा दीन इस्लाम के लिए एक बहुत ही खालिस, बहुत ही प्योर और बहुत ही हक पे था। तो ये जो नैरो पर्सपेक्टिव है ना कि अपने कम्युनिटी को, अपने कुंबे को या अपनी फैमिली को तरजीह दी जाए, ये उससे कहीं ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने अपनी बेस्ट चीजें सेक्रीफाइस कर चुके थे और उनके लिए ये सब चीजों का कोई मायने नहीं था। और इनको शुरा काउंसिल में लेने का मकसद भी ये था, ना कि इनके कोई पर्टिकुलर फेम के वजह से या कोई कुंबे की वजह से या कोई लिनियज की वजह से या कोई फेवरेटिज्म की वजह से, बल्कि इनका जो रुतबा मर्तबा है इस्लाम में, क्योंकि वो सीनियर थे, उन्होंने उस टाइम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था जिस टाइम पे एकदम शिद्दत से जो कुरैश है वो उनके दुश्मन थे। तो ये लोग जो है, कोई कामयाबी नहीं थी, कुछ भी हासिल नहीं हुआ था इनिशियल स्टेज में, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था, दीन इस्लाम कबूल किया था, तो इनकी सीनियरिटी को हमेशा एक्नॉलेज किया जाता है। तो इनकी वफादारी को या इनकी समझबूझ को या इनके कैरेक्टर और पर्सनालिटी के ऊपर कोई भी तोहमत या शक शुबा नहीं किया जा सकता। Words that were falsely attributed to Ali radiallahu anhu. Ibn Kathir said, what is said by many historians such as Ibn Jarir and others who narrated from unknown men about Ali saying to Abdurrahman,
You deceived me. You only appointed him because he is related to you through marriage, and so that he would seek your advice every day, and that he did not swear allegiance to Uthman until Abdurrahman ibn Auf said, verily, those who give bay'ah, the pledge to you, they are giving bay'ah pledge to Allah. The hand of Allah is over their hands. Then whosoever breaks his pledge breaks it only to his own harm, and whoever fulfills what he has covenanted with Allah, he will bestow on him a great reward. This is from Surah Fatha, Surah 48, verse 10. And this accusation actually is false. इब्न कथीर कहते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरियन जैसे कि इब्न जरीर और उनके अलावा भी वो लोग ये एक अननोन किस्म की बात अली रदियल्लाहु अन्हु के बारे में कहते हैं कि ये डायलॉग जो हुआ था कि अली रदियल्लाहु अन्हु ने अब्दुर्रहमान को कहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को इसलिए अपॉइंट किया क्योंकि वो तुम्हारे शादी के थ्रू रिलेटेड हैं और तुम रोज जो है उनके साथ ताउन करके उनको एडवाइस दोगे और लोगे, और ये जो बात है उसको घुमा दिया। यानी ये लोग जो होते हैं ना, जो अपनी अलग वाला जो सेक्ट है, राफिदीज वाला जो सेक्ट है, ये सही चीज को भी एक अलग एंगल देख, जैसे कुरान की आयत को लेकर एक अलग एंगल दे के अपनी बात को रखेंगे। जैसे कि ये सूरह फतह के अंदर अभी जो ये इसका रेफरेंस दे रहे हैं और उसको लिंक कर रहे हैं कि हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के बीच में ये डायलॉग हुआ था, जहां पर उन्होंने उनको अलेज किया था कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने उनके साथ दगाबाजी की। तो ये गलत है, ऐसी कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। और ये जो है कि ये लोग जो रेफरेंस दे रहे हैं वो सूरह फतह का दे रहे हैं। तो मैं आपको आया नंबर बता देती हूँ, आप प्लीज इसकी तफसीर जो है वो डिटेल में पढ़ें, तो आपको जो एक लिंक है यू कैन कनेक्ट इट वेरी वेल विद दिस कि आखिर इसका माजरा क्या था, बिकॉज इसमें तफसीर को जानना बहुत जरूरी है। तो सूरह फतह जो कि सूरह नंबर 48 वर्स नंबर 10 है, तो ये प्लीज आपका एक छोटा सा होमवर्क है, जस्ट लुक इनटू इट कि इसकी तफसीर क्या है, तो यू विल नो द करेक्ट पिक्चर। Abu Makhnaf stated in his report about the Shura that Amr ibn al-As and al-Mughira ibn Shubah sat at the door and Saad told them off. This would be strange if it was done by low-class people, yet alone the noble Sahaba. How could Saad have said to them, you want to say that you were present and were among the people of Shura, when people already knew the people of Shura by name and that was well established among them? In fact, the report of Abu Makhnaf contradicts itself, as is clear to anyone who studies it and examines it against the sound sources. It is too obviously strange to mention. Dr. Yahya al-Yahya has produced examples to disprove this report and show that it is not worthy of attention. These are some of the ideas that he mentioned in order to warn against these poisonous notions that are widespread in our classical history books, which have influenced our thinkers, writers, and historians. अबू मखनफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया शुरा को लेकर कि अमर इब्न अल-आस और मुगीरा इब्न शुबा जो है वो डोर के पास बैठे और साद ने उनको बताया, यानी ये एक बहुत ही स्ट्रेंज सिलसिला या सिनेरियो है जो कि लो क्लास लोगों के साथ होगा। यानी सहाबास जो है इस तरीके की कुछ हरकत नहीं करेंगे कि दोनों सहाबाज जो हैं अमर इब्न अल-आस और अल-मुगीरा इब्न शुबा वो डोर पे बैठे, उन्होंने साद को जाने के लिए कह दिया। यानी इस तरीके का अमल या इस तरीके का किरदार या इस तरीके की हरकतें ये नोबल सहाबाज की नहीं हो सकती। और साद कैसे उनको कह सकते हैं, यू वॉन्ट टू से दैट यू वर प्रेजेंट एंड वर अमंग द पीपल ऑफ शुरा, यानी आप इनको कैसे कह सकते हो कि आप वहां पर मौजूद थे और आप ये शुरा के लोगों को जानते थे, उनको नाम से जानते थे, वेल एस्टेब्लिश्ड थे। तो ये जो अबू मखनफ की ये जो छोटी छोटी बातें और ये जिस तरीके से मैं जैसे कह रही हूँ ना मनगढ़ंत और फेक इल्जामात जो है झूठे, तो उसको हर लेवल पे रिफ्यूट किया गया है। तो जैसे कि हमने पिछली बार देखा पिछले वाले पॉइंट के ऊपर कि कैसे इब्न तैमिया ने उसको रिफ्यूट किया, उसी तरीके से अभी डॉक्टर याहिया अल याहिया जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स पेश करते हैं रिपोर्ट में अपनी, जिससे कि ये सारी इनके जो झूठे इल्जामात है उसको धीरे धीरे वो रिफ्यूट करते जा रहे हैं। नंबर 1, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु वाज मोर क्वालिफाइड टू बिकम द कैलिफ। तो सबसे पहली नुक्ता जिसमें यानी
कोई दो राहें नहीं थी कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु was the most qualified person next in line to become the Khalifa after Umar ibn Khattab radiallahu anhu. No believer would doubt that Uthman radiallahu anhu was more qualified to become Khalif and that his claim to the Caliphate was more valid. यानी ये तो hands down जिसे हम कहते हैं ना, सोचने की भी जरूरत नहीं, डाउट करने की भी जरूरत नहीं. No one can criticize that except one who has deviation in his heart and who bears a grudge against the companions of the messengers of sallallahu alaihi wasallam because of the hatred that he has in his heart towards them. ये बात कोई और नहीं सोच सकता सिवाय उसके जिसके दिल में कोई किना हो, कोई बुगस हो और वो डेविएटेड हो सही रास्ते से. क्योंकि जो सही है दिल से, जो साफ है, जिनको कोई डिजीज ऑफ द हार्ट नहीं है, उनके सामने तो बात खुली है, तो वो इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु कितने क्वालिफाइड हैं और कितने डिजर्विंग है. लेकिन जिसके दिल में वो फितना का जो बीज है, मुनाफिकत का बीज है, डेविएटेड है, उसके दिल में खराबी है, तो वो डेफिनेटली इस नुक्ते को लेकर पकड़ेगा. This only applies to the Rafidi Shia who have made it their main aim in life to slander and express hatred towards the Sahaba. यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले खुले अल्फाजों में कहा है कि आप अब उनके सहाबास को, जो उनके इतने डियर थे, इतने करीब थे, उनको आप बुरा बुरा भला नहीं कह सकते, उनको आप बदुआ नहीं दे सकते, उनसे आप हेट्रेड नहीं रख सकते. तो सुभान अल्लाह, इस तरीके की फीलिंग रखने वाले कैसे कह सकते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं? कैसे कह सकते हैं कि वो उनकी इत्तिबा कर रहे हैं जब वो उनकी कही हुई ताकीद को उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं? और ना कि सिर्फ वर्क कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स रिलीज कर रहे हैं. आई मीन आप देखिए कितनी हद तक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं. एंड इट्स नॉट इजी. यानी आप इस चीज को देख लें कि आपका जो दिल में ईमान है, फिर उसका क्या दर्जा है, क्या क्या किस तरीके से यू कैन डिक्लेयर योर सेल्फ कि आप मुसलमान हैं और आप दीन इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर रहे हैं, जबकि ये इतने बड़े नुक्ते के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हैं. तो ये हेट्रेड टुवर्ड सहाबा वाला जो फैक्टर है, ये आपके लिए बहुत बड़ा बवाल बन सकता है. The criticism that they direct against the first three caliphs is not worth paying attention to because it is obviously unfounded and fabricated. यानी वो इतनी अजीब और इतनी झूठी और इतनी कमजोर बात है कि उसके ऊपर कोई गौर फिक्र या उसको ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत, क्योंकि वो वर्थ है ही नहीं. वो वर्थ है ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी यूनिवर्सल चीज है और उसके ऊपर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक बंदा उठ के बोले कि सूरज जो है वो लाइट नहीं दे रहा, सन जो है वो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, सब कहेंगे ये पागल है. इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट, एवरीबडी नोज इट, इट्स प्रूवन, खलास, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ट्रुथ. तो इस तरीके की बात है ये कि सबको पता है हु द फर्स्ट थ्री खालिफ्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुए, वो सही तरतीब से हुए, वो उसमें अल्लाह ताला की रजा थी, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा थी, एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन. तो उसके ऊपर कोई ताना तनकीद करे या कहे ये रॉन्ग डिस्कशन हो गया और ये उसमें कुछ गबन हो गया या कोई गफलत हो गए, यानी दिस इज समथिंग विच इज टोटली आउट ऑफ द रेगुलर लॉजिकल थिंकिंग. यानी इस चीज को कोई मानेगा नहीं, वो इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, वो इस चीज के ऊपर अटेंशन नहीं पे करेंगे. लेकिन इनकी आप खुराफत की हिम्मत देखें, यानी इनकी जुर्रत देखें कि ये उल्टी बात, गलत बात, फैब्रिकेटेड बात भी कर रहे हैं और उसको लिख के रिपोर्ट्स को आम भी कर रहे हैं. एंड मे अल्लाह फरगिव अस, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनक, एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी कम्युनिटी का इसको फॉलो करके इस पे ईमान भी रख रहे हैं. यानी ये कितनी अजीब और गरीब बात है. अगर कोई बंदा गौर व फिक्र करे एंड दुआ करे अल्लाह ताला से हिदायत के लिए, तो इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी है, बिल्कुल साफ है. लेकिन आप देखें कि भटक भटक जाते हैं जब लोग, तो वो कैसे उनको शैतान किस गफलत में डाल देता है कि वो सफेद को काला और काले को सफेद समझने लगते हैं. मे अल्लाह फरगिव अस, अल्लाह ही यहदीनी व यहदीकुम, अल्लाह इस्लाहकुम या रब. अल्लाह ताला हमें सही दीन पर सही हिदायत दे के रखे या रब. अल्लाह फकीहना फिद्दीन या रब. The criticism that they direct against the first three caliphs is not worth paying attention because it is obviously unfounded and fabricated. In a number of definitive Sahih Hadith and well-known reports, there are signs that Uthman ibn Affan radiallahu anhu was qualified to become Caliph. These reports include the following. Allah subhanahu wa ta'ala says, Surah Nur,
verse 55. Surah 24, verse 55. Allah has promised those among you who believe and do righteous good deeds that He will certainly grant them succession to the present rulers in the land, as He granted it to those before them, and that He will grant them the authority to practice their religion, which He has chosen for them, that is Islam, and He will surely give them in exchange a safe security after their fear, provided they believe the believers worship me and do not associate anything in worship with me. But whoever disbelieve after this, they are the fasiqun, the rebellious, disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. यानी अब देखिए, खुली सी आयत है, क्लियर है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो ईमान लाते हैं और अमाल साले करते हैं तो उनके लिए क्या है, उनके लिए जो प्रेजेंट रूलर है उसके बाद सक्सेशन में, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे लोग हुक्मरान दिए जाएंगे जो कि चूजन है, चूज किए गए मखसूस लोग हैं, और वो आपको सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, और तब तक के शर्त क्या है कि आप अल्लाह ताला की खालिस बिना शिर्क के इबादत करें और किसी और को साथ शरीक ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप किस में शामिल हो जाएंगे, फासिकून में से, जो कि बहुत ही रिबेल करने वाले और डिसोबीडियंट है अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि अल्लाह ताला का प्रॉमिस है ये अल्लाह ताला की खालिक होने की, मालिक होने की, मुदब्बर होने की ये एक दलील है कि अल्लाह ताला आपके लिए किस तरीके का इंतजाम कर रहे हैं। ही इज द खालिक, ही इज द मालिक, ही इज द मुदब्बिर, जो आपको नर्चर भी कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, आपको पूरा एक प्लान दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो आप देखें, यानी हाउ कैन यू गो अगेंस्ट दिस वर्ड्स जब अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद मेंशन कर रहे हैं क्लियरली। The relevant point in this verse with regard to Uthman being qualified for the caliphate is that he was one of those to whom Allah granted succession. यानी वो जो तरतीब के साथ एक के बाद एक हो रहा था, तो उस लाइनेज में है वो, and granted authority। यानी आप देखिए, वो आया के अंदर लिखा है he has chosen for them, यानी ये किसी की तकसीम नहीं है, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की मशी है, ये अल्लाह की कदर है, सुभान अल्लाह। During his caliphate, he did well and ruled the people with justice, establishing regular prayer, paying zakah, enjoying what is good and forbidding what is evil. So this verse indicates that he was qualified to become caliph. Subhanallah. अब आप देखेंगे डॉक्टर याहिया ने इतना अच्छा, यानी उनकी बात, झूठी बात के ऊपर भी, क्योंकि लोग जो है ना, वो आप देख रहे होंगे आज भी यही मसला चलता है सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी कुछ भी, कैसी भी सही झूठ गलत इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करो, और लोगों ने अपने ऊपर जैसे कि एक ये फर्ज समझ के बांध दिया है कि हमें फॉरवर्ड करना है, हम तहकीक करें ना करें, हाँ, हालांकि इसके अंदर क्या मटेरियल है हमें नहीं पता, लेकिन हमने फॉरवर्ड करना है। अभी आज सुबह में ये एक किस्सा हुआ, वन ऑफ द ग्रुप्स, आई मीन सुभान अल्लाह, एक वीडियो था और उसके नीचे उसकी टेक्स्ट थी, वीडियो रिलेटेड कुछ था कि इंडिया में कहीं पर एक ये किस्सा हुआ है, तो वीडियो इज सेइंग समथिंग एल्स और जो टेक्स्ट था वो उसके ऑपोजिट था। इत्तेफाक से आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग एंड आई सॉ दैट एंड मैंने क्लिक किया। इट वाज अ शॉर्ट वीडियो, आई सॉ इट कंप्लीटली, दो बार इनफैक्ट मैंने उसको सुना, और फिर बाद में जब मैं टेक्स्ट पढ़ी तो वो उसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, और फिर मैं परेशान हो गई कि ये क्या माजरा है, यानी लोग वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको देख भी नहीं रहे कि क्या है, बस वो टेक्स्ट पढ़ के आगे फॉरवर्ड, टेक्स्ट पढ़ के आगे फॉरवर्ड, और उसके अंदर यानी आप एक मुहज्जबा दो औरतों के ऊपर तहमत लगा रहे हैं। तो आप देखिए, घुमा फिरा के अगर एक मुहज्जबा नेक औरत के ऊपर आप तहमत लगाएं तो वो मेजर सिन में जाएगा। तो अब आपको ये नहीं लग रहा है कि आप इस तरीके का ऑनलाइन गुनाह हो रहा है आपसे, और वो कहां से कहां पहुंचेगी, और ये आपके थ्रू जा रही है, आपके अकाउंट से जा रही है। आई मीन लोगों के अंदर वो नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है कि इसका इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट क्या होगा, और ये घूम रही है क्लाउड में। यानी हमें ना ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा सा गौर फिक्र करना पड़ेगा, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, क्वालिटी के पीछे भागना है। आपकी नियत क्या है, आपका मकसद क्या है, आपको फॉरवर्ड करने से लोगों का भला हो रहा है, अवेयरनेस हो रही है, आपको अजर मिल रहा है, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉरवर्डिंग इट। हमें किसी ने कहा नहीं है कि एम्प्लॉय नहीं किया है कि आपको ये काम करना है। वाई आर वी डूइंग दिस, वाई आर वी क्रिएटिंग chaos and fear and confusion in the minds of the people। यानी सुभान अल्लाह, आई वाज रियली शॉक्ड। मैंने रिप्लाई किया, आई रिस्पॉन्डेड एंड आई गिव नाइस दिस थिंग, थोड़ा सा उनको मैंने आइडिया दिया कि क्या है ये, बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिना सोचे समझे zombies बने हुए हैं सारे। सुभान अल्लाह, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब, आमीन। बट
हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा, और ये अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी ताकीद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेस होते जा रहा है। तो वी हैव टू थिंक ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। कहते हैं ना, गलत नहीं देखना, गलत नहीं सुनना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं फॉरवर्ड करना, इसको भी ऐड कर लें। तो वी हैव टू think and ponder and contemplate before we hit that send button. दूसरी रेफरेंस उन्होंने दी फ्रॉम सूरह फतह, सूरह नंबर 48 वर्स 16। वो कहते हैं, Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to the Bedouins who lagged behind, you shall be called to fight against a people given to great warfare, then you shall fight them, or they shall surrender. Then if you obey, Allah will give you a fair reward. But if you turn away as you did turn away before, He will punish you with a painful torment. तो ये सूरह फतह की 16 आयत है, इसकी भी आपने तफसीर देखना है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें से रिलेवेंट पॉइंट कौन सा निकल रहा है? The relevant point in this verse with regard to Uthman being qualified for the caliphate is that those who called these Bedouin would call them after the Prophet ﷺ was gone, and that was Abu Bakr, Uthman, and Umar radiallahu anhu. Abu Bakr called them to fight the Byzantines, Persians, and Turks. So it was obligatory to obey these three according to the text of the Quran. And if it was obligatory to obey them, then their caliphate was valid. ये सूरा के अंदर जो मेंशन किया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेदुइन्स हैं, जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं, यानी पीछे रह गए हैं, उनको आप फाइट के लिए बुलाएंगे, और एक बड़ा वॉरफेयर, बड़ी जंग होगी, और वो आपके साथ जंग करेंगे, या फिर वो सरेंडर कर जाएंगे। और अगर आप इस चीज को ओबे करते हैं, ये कमांड्स को ओबे करते हैं, देन अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से आपको एक अच्छा अजर मिलेगा। लेकिन अगर आप पलट जाते हो या साथ नहीं देते हो, तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह ताला की पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ, कि अच्छा खासा अजाब आपको होगा। ओके, सो अब इसमें ये पॉइंट है कि उस्मान रदी अल्लाह अन्हु क्यों खैलिफेट के लिए क्वालिफाई करते हैं? क्योंकि ये जो बेदुइन का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, कौन है वो? कौन है वो अरब के, जेन्यून अरब के क्लैन में से, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है? और फिर वो कौन सी वॉरफेयर है? तो अगर हम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की कैलिफेट वाले दिन में जाएं, तो हमें मिलेगा कि जब उन्होंने बाइजेंटाइंस और पर्शियंस और टर्क्स के अगेंस्ट में जो फाइट के लिए उन्होंने प्लान किया था, एंड ही अपील्ड टू द उम्मा एंड टू द नेबरिंग अलाइज, तो ये उसका मेंशन है कि जब उन्होंने वॉर के लिए इनवाइट किया था एंड देन सारे जॉइंट हैंड्स किए थे। तो ऑफ कोर्स वी हैव कवर्ड दैट चैप्टर जब हमने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की बायोग्राफी की थी। तो ये बेदुइन्स में प्लूरल फॉर्म में ये कौन है? ये तीन, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु एंड उस्मान रदियल्लाहु अन्हु। तो ये वाला जो अल्लाह ताला की तरफ से कमांड या इंडिकेशन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो बेदुइन्स है, वो ये तीन के बारे में बात कर रहे थे। और वो जो जंग के बारे में जो रेफरेंस था, वो ये अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने जो बाइजेंटाइन, पर्शियन और टर्क्स के लिए इन्वाइट किया था, ये उस जंग की बात है। तो जब इनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुली खुली, जैसे कि एक वार्निंग है कि ये जब कॉल करेंगे तो आपको जाना है फाइट के लिए, अगर आप जाते हो तो इंशाल्लाह अजर है, आप नहीं जाते तो अजाब है शदीद। तो सुभान अल्लाह, दिस इज अ प्रूफ कि कौन इनवाइट करेगा आपको जंग के लिए? कोई नॉर्मल ऑफिशियल तो नहीं, द पर्सन एट द हाईएस्ट रैंक। हाईएस्ट रैंक कौन है इस्लामिक स्टेट का? द खलीफा ऑफ द स्टेट। तो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट अल्लाह की तरफ से इंडिकेशन है कि ये बदुइन्स जो है ये तीन थे, बैक टू बैक। तीसरा, it was narrated that Abu Musa radiallahu anhu said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam entered a garden and told me to watch the gate of the garden. A man came and asked permission to enter, and he said, let him in and give him glad tidings of paradise. And that was Abu Bakr. Then another man came and asked permission to enter, and he said, let him and give him the glad tidings of paradise. And that was Umar. Then another man came and asked permission to enter, and he said, let him enter and give him the glad tidings of paradise for a calamity that will befall him. And that was Uthman ibn Affan. ये वाली हदीस हमने पहले भी पढ़ी थी। तो इसके बारे में भी क्या बात हो रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू मूसा जो है
वो इसके नरेटर हैं, वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक बार वो गार्डन में एंटर हुए और उन्होंने अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि गेट को वॉच करो, और एक आदमी अंदर आएगा परमिशन के लिए, तो उसको आने देना और उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। तो वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। और इसी तरीके से उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु एंड उस्मान रदियल्लाहु अन्हु। लेकिन उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के लिए उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि एक कलामिटी, एक आजमाइश, एक बवाल होगा, फितना होगा। तो हम आगे देखेंगे कि ये क्या है, बिकॉज एवरी टाइम वी आर रीडिंग अबाउट दिस हदीथ पॉइंट्स टू द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट थ्री कैलिफ। अब आप देखिए, आप हर एक बात, हर एक एक्शन, हर एक कमांड कुरान एंड हदीथ में, ऑथेंटिक हदीथ में, वो जो है सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं होती, उसके बहुत सारे मायने होते हैं, वो बहुत डीप होती है। इसीलिए बार बार अल्लाह ताला हमको कहते हैं गौर फिक्र करो, कंटेम्पलेट करो, पॉन्डर करो, तदब्बुर करो, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको ना रियली फोकस करना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसा बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है, ऐसा नहीं है। यू रियली नीड टू फोकस, पे अटेंशन। आप देखिए, ये जो इसकी तरतीब थी, जो इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थी, पहले अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, देन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, एंड देन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु। तो यही तरतीब जो है, सबको जन्नत की बशारत। और वो आप देखें किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रायल का, वो जो कलामिटी है, उसका भी इशारा दिया, यानी ये अल्लाह की तरफ से थी। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है, हदीसें भी जो हैं, वो वही की तरह नाजिल होती थी। इट वाज नॉट समथिंग कि वो अपने मन से बोलते थे। तो ये भी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा हिस्सा है, हदीसों को फॉलो करना, समझना, ऑथेंटिक सही हदीसों को समझना और इसके ऊपर अप्लाई करना। तो ये भी एक इशारा था, एकदम तरतीब से डायरेक्ट इशारा था। The hadith points to the order of the first three caliphs and foretells a calamity that would befall Uthman. This calamity befell him when he was besieged in his house until he was killed unlawfully. So this hadith is one of the signs of prophethood and indicated that Uthman would be martyr. May Allah be pleased with him. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गैब इल्म नहीं था, उनके पास वही इल्म था जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नाजिल किया था। ठीक है, तो ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन थी, और ये एक दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के लिए, कि वो एक सच्चे प्रॉफिट और मैसेंजर थे। और ये जो हादसा हुआ था, जिसमें उनको कैद कर दिया गया था उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को, और फिर उनको अनलॉफुली, बहुत गलत तरीके से उनका कत्ल कर दिया गया था, तो उसकी भी उन्होंने एक टिप और सिग्नल दे दी थी। और वो अपने दिल से नहीं बोलते थे, वो अल्लाह ताला उनको जितनी इंफॉर्मेशन रिवील करते थे, वो आगे पहुंचाते थे। दैट मीन्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम didn't have any गैब इल्म, nobody has any गैब इल्म, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है। Abu Dawud radiallahu anhu narrated with his isnad from Jabir ibn Abdullah that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Last night a righteous man was shown in a dream that Abu Bakr was tied to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and Umar was tied to Abu Bakr radiallahu anhu, and Uthman was tied to Umar radiallahu anhu." एक और एक हदीस अबू दाऊद की है, जो बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसकी इसनद जो है जाबिर इब्न अब्दुल्ला से है, वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक बार एक नेक आदमी को एक ख्वाब आया कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांधे हुए, मतलब साथ में उनके टाइड है, उनके साथ है उमर रदियल्लाहु अन्हु, उमर रदियल्लाहु अन्हु अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को बंधे हुए हैं, एंड उमर रदियल्लाहु अन्हु को उस्मान रदियल्लाहु अन्हु बंधे हुए हैं। यानी अब देखिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंडिकेशंस, इंटरप्रिटेशंस यही बता रहे हैं द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किस तरीके से होगा, तरतीब किस तरीके से होगी। Jabir said, when we left the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, we said, as for the righteous man, that was the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and as for being tied to one another, they will be in charge of this matter with which Allah has sent His Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो वो जो नेक बंदा था, वो और कोई नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ड्रीम था। एंड आपको पता होगा कि रेवलेशंस जो है ड्रीम के फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है ना, और जो प्रोफेट्स के ड्रीम होते हैं खास तौर से, वो जो है रियल होते हैं। तो इस ड्रीम का इंटरप्रिटेशन या इंडिकेशन क्या है कि जो रिसाला या जो मैसेज या जो पर्पस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, उसको कैरी ऑन करेंगे ये तीन, अपनी एक प्रॉपर खलीफा की पोजीशन में, यानी कमांड अपने हाथ में लेकर इंशाल्लाह ये इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। तो ये भी एक इंडिकेशन है। और ये यानी
अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ड्रीम है तो इसको कोई डिनाई कैसे कर सकता है? यानी आप देखिए ये राफिदीस के बारे में जब आप सोचें कि हाउ कैन दे रिजेक्ट ऑल दिस, ये इतनी खुली खुली कुरान की आयतें, ये इतनी स्ट्रॉन्ग हदीस, क्लियर हदीस है, यानी इसके अंदर कोई समझने के लिए कोई और आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। द ऑर्डर इज क्लियर, इट इज क्रिस्टल क्लियर। तो आप देखें कि जब हिदायत ना हो, तौफीक ना मिली हो, और आप गुमराही अनौज़ बिल्लाह की तरफ चले गए हैं, तो आप हकीकत से बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। Abu Abdullah al-Hakim narrated with his isnad that Abu Hurairah radiallahu anhu said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, there will be turmoil and conflict, or conflict and turmoil. We said, O Messenger of Allah, what do you command us to do? He said, be with the trustworthy one and his companions. यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि फितना और इख्तिलाफ होगा, या इख्तिलाफ और फितना होगा। तो कंपेनियन साहबास पूछ रहे हैं कि हम क्या करना चाहिए, हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जो ईमान वाला है उसके साथ दो और उसके सहाबाओं का साथ दो। अब ये इशारा भी किसकी तरफ जा रहा है? एंड ही पॉइंटेड टू उस्मान radiallahu anhu. This hadith is an evident miracle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the points of the truth of his prophethood, as it foretells the turmoil, the fitna that would occur during the caliphate of Uthman, and it happened as it was foretold. The hadith also indicates that Uthman was a legitimate caliph, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded the people to rally around Uthman. When there arose turmoil and conflict with the Caliph and the leader, he commanded them to unite around him and stay with him because he would be following the truth. Whereas those who rebelled against him would be following falsehood, deviancy, whims, and desire. The Messenger ﷺ testified that Uthman would be adhering to the truth and would not depart from it. Subhanallah, ये जो हदीस खास तौर से थी जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा दे रहे हैं कि फितना होगा, इख्तिलाफ होगा, लेकिन आप जो है, जो ईमान वाला है, जो सच्चा है, उसका साथ देना और उसके सहाबा का साथ देना। तो जब अगेन ये एक दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड को कंफर्म करने वाली है। दूसरा, ये इस चीज को भी कंफर्म कर रही है कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु जो है वो खलीफा बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये लोग जो हैं, जो उनका साथ देंगे वो सच पे हक पे होंगे, और जो लोग उनकी खिलाफत करेंगे, अपनी मर्जी, अपने डिजायर्स, अपने विम्स और फैंसेस, अपनी हवा, अपनी मर्जी और अपने झूठ पर जिनका मबनी है, वो ऑफ ट्रैक रहेंगे। और उस्मान रदियल्लाहु अन्हु जो है वो एंड तक सच्चाई पर रहेंगे, हक पर रहेंगे, और उसी के साथ वो इस दुनिया से जाएंगे। Abu Isa at-Tirmidhi narrated with his isnad going back to Aisha radiallahu anha that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, O Uthman, Allah may give you a garment to wear, and if they want you to take it off, do not take it off for them. अबू ईसा अतिरमिदी के ये नरेट करते हैं, इसकी इसनद जाती है आयशा रदियल्लाहु अन्हा तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह ताला आपको एक लिबास देंगे, तो वो लिबास, और लोग जो है वो आपको निकालने के लिए कहेंगे, तो नहीं निकालना। अब ये लिबास क्या है? इन दिस हदीस द कैलिफेट इज लाइकन टू अ गारमेंट, यानी खिलाफत को जो है ना, खलीफा बनने का जो उनका एक पॉइंट है, या उस पोजीशन पे रहने वाला जो नुक्ता है, उसको ड्रेस की तरह एक मेटाफोरिकली एक्सप्रेस किया गया है कि वो ड्रेस जो है वो एक्चुअली उनके खलीफा होने की बात है। तो वो कह रहे हैं इसको लोग आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, हालात ऐसे बनेंगे और ऐसे मसले मसाइल होंगे, बट आप अपनी जगह से हिलना मत, यानी नॉमिनेशन अपनी हटाना मत। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको जैसे एक तरीके से अपॉइंट किया हुआ है, तो लोग आपको अगर हटाने की या डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह की खातिर आप हटना मत, बिकॉज आप सच्चाई पर हो, हक पर हो, और अपनी जगह छोड़ के फॉल्सहुड के तरफ नहीं चले जाना। At-Tirmidhi narrated with his isnad that Abu Sahla said, Uthman said to me on the day when he was besieged, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave me some advice and I'm going to adhere to it. The advice given was not to give up the caliphate, as he said.
if they want you to take it off, do not take it off for them. The words I'm going to adhere to, it mean I'm going to follow that advice. यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंडिकेशन दिया था कि उनको जो है अपनी जगह पे, हक पे, सच्चाई पे रहना है, लोगों के प्रेशराइज करने से हट नहीं जाना। यानी ये सलाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने आखिरी दम तक उसको फॉलो किया। He did not give up. Abu Abdullah al-Hakim narrated with his isnad going back to Abu Sahla, the freed slave of Aisha radiallahu anha, that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Call for me, or I wish there was here with me one of my companions." She said, "I said Abu Bakr." He said, "No." I said, "Umar." He said, "No." I said, "Your cousin Ali." He said, "No." I said, "Then Uthman." He said, "Yes." So Uthman came and he said to Aisha, "Get up and leave us." The Prophet sallallahu alaihi wasallam started whispering to Uthman and his color changed. He, the narrator, said, "Then when the day of the siege came and said, 'Will you not fight?' He said, 'The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave me some advice and I will adhere to it.'" This hadith and the one before it point to the legitimacy of Uthman's caliphate. Whoever rejects his caliphate and does not believe that he is one of the people of paradise and martyrs and speaks disrespectfully of him is beyond the pale of faith and Islam. अब ये वाली हदीस भी again we have repeated but we'll do it again. अबू अब्दुल्ला अल हकीम नरेट करते हैं। इसकी इसनत कहाँ तक जाती है? अबू साहला तक। अबू साहला कौन थे? वो आजाद गुलाम थे आयशा रदियल्लाहु अन्हा के। ठीक है, ये मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनको कहा कि मुझे आई विश कि मेरा एक सहाबा मेरे साथ हो। तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने पूछा, अबू बकर? उन्होंने कहा नो। उमर? उन्होंने कहा नो। उन्होंने कहा आपके कजिन अली? उन्होंने कहा नो। फिर उन्होंने कहा उस्मान? उन्होंने कहा हाँ। फिर जैसे ही वो आए तो उन्होंने आयशा रदियल्लाहु अन्हा को कहा कि साइड में हो जाए, यानी उनको अकेले में उनसे बात करनी। तो वो दोनों विस्पर करने लगे और उनकी बात सुनकर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के फेस का कलर चेंज हो गया। और जब ये सीज का डे आया, जब वो वाला दिन एक्चुअली आया जब उस्मान रदियल्लाहु अन्हु पे ये बवाल या ये जो इख्तिलाफ की जो हौलनाकियां आई, तो उस टाइम उन्होंने कहा, लोगों ने उनसे कहा कि आप फाइट बैक नहीं करोगे, विल यू नॉट फाइट? तभी उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ सलाह दी थी और मैं उसको फॉलो करूंगा। तो कोई भी, अभी इतनी खुले खुले अल्फाजों में एक्सप्लेन किया गया है हदीसों में एंड कुरान की वर्सेस में, तो अगर कोई भी उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की खलीफत और इस चीज को बिलीव नहीं करता कि वो जन्नत में से नहीं है, वो शहीद नहीं है, या उनको बुरा भला कहता है, या किसी भी इस पॉइंट्स को रिजेक्ट करता है, तो वो जो है, यानी उनका किस तरीके का ईमान है या किस तरीके का उनका दीन इस्लाम है, ये समझना मुश्किल है। क्योंकि दिस इज टोटली समथिंग जो कि आपको बाहर ले जाता है, आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम, ये वाली फैक्टर। क्योंकि यू कैन नॉट रिजेक्ट कुरानिक वर्सेस, यू कैन नॉट रिजेक्ट हदीथ। तो ये बहुत सीरियस मामला है एंड इसीलिए हमें हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे बिलीफ सिस्टम को अच्छी तरह से चेक करके रखना चाहिए कि कहीं गलती से अनइंटेंशनली हम लोग कुछ ऐसा तो नहीं कर जाते हैं, लाइल्मी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, एरोगेंस की वजह से, वी डोंट नो, ईगो की वजह से, कि कुछ ऐसे नुक्ते पे हम कमेंट कर लें या कुछ ऐसी हरकत अननोइंगली हम कर ले जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे ईमान को जाता हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जैसे मैंने पहले कहा था बीच में डिस्कशन में, कि कोई भी पॉइंट, कोई भी नुक्ता, कोई भी फॉरवर्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाने से पहले उसको चेक कर लें, क्योंकि ये हमारे दीन की बारीकियां हैं एंड सोशल मीडिया एंड शैतानी ट्रैप्स इस तरीके से फैले हुए हैं जो कि हमें हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अपनी नॉलेज एनहेंस करिए, दूसरा तहकीक करिए, तसल्ली करिए और फिर आगे पहुंच जाइए। और अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, जो कि हमारा यूजुअल एक्सक्यूज होता है, वी आर टू बिजी, तो आगे फॉरवर्ड मत करिए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो गुनाह में या झूठ में अपना हिस्सा मत डालें, क्योंकि आप देखेंगे एक एक छोटी छोटी चीजें कितनी पावरफुल और कितना इम्पैक्ट रखती हैं।
So may Allah forgive us for all our shortcomings, inshallah, ya Rab. And may Allah guide us, may Allah increase us in our iman, in our ilm, in our amal, and bestow khair and afia on us always, and on our family, and on our offsprings, हमारे बच्चे, पूरी हमारी lineage, पूरी हमारी उम्मत के ऊपर, inshallah, ya Rab. On that note, inshallah, I would like to close today's session. Inshallah, हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी. एंड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी, अगर नहीं है तो आई जस्ट क्लोज इट. जज़ाकल्लाह खैर. वय्याकी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु रुका व अतूबु इलैक. वय्याकी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सिस्टर्स. इंशाल्लाह मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Inshallah, even you all.